Hello friends, welcome to Quantum Chemistry. Today we are going to discuss the new concept of solid state series, that is types of crystal lattices. Now in the types of crystal lattices, actually crystal lattice classified into 14 types under the 7 headings. 14 types under the 7 headings on the basis of edge length, that means sides, and on the basis of angle. To explain this, we have to consider one of the cube. This is three-dimensional cube in which suppose that this is x, this is y, and this is z. In this cube, the edge length is a, and angle in between them, that is alpha. You can write beta and gamma. That means on the basis of side length and alpha, beta and gamma, it classified into 14 types under the 7 headings. Those 14 types are on the basis of cubic, tetragonal, orthorhombic, monoclinic, triclinic, hexagonal and rhombohedral. तो एक्चुअली जो 14 टाइप्स यहाँ पर क्लासिफाई होते हैं वो 7 हेडिंग्स के अंडर में हैं और वो 7 हेडिंग्स आर लुक लाइक एज सच टाइप. नाउ फर्स्ट वन इज क्यूबिक. यहाँ पर मैंने एक चार्ट ड्रॉ किया है. इस चार्ट के अंदर फर्स्ट वन नेम, आफ्टर देन एक्सियल लेंथ, अनइक्वल साइड्स, एंगल एंड एग्जांपल्स. नाउ क्यूबिक में, इन क्यूबिक क्रिस्टल all the sides are equal, that means A is equal to B is equal to C. यहाँ पर क्या होगा, all the sides are equal, A is equal to B is equal to C, and all the angles are of 90 degree, alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree. Such type of crystal called as cubic crystal. Called as what? Cubic crystal. उसे cubic crystal कहा गया है. And this cubic crystal in which all the sides are same, that means unequal sides are 0. यहाँ पर unequal sides 0 होंगे. This cubic crystal classified into 3 types. That means what? You can observe. Number first, cubic. This cubic crystal classified into 3 types: SCC, BCC and FCC. You are well familiar about simple cubic crystal, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल एंड नंबर ऑफ आइटम्स, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है. नंबर ऑफ आइटम इन एससीसी 1, नंबर ऑफ आइटम इन बीसीसी 2 एंड नंबर ऑफ आइटम इन एफसीसी आर 4. तो यहाँ पर एससीसी में कंट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पर 8 आइटम्स रीअरेंज एट द 8 कॉर्नर. यहाँ पर सारे आइटम्स कॉर्नर पर हैं और कॉर्नर पर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 इतना होता है. तो 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1. बॉडी सेंटर में कॉर्नर प्लस एक आइटम बॉडी के सेंटर में होगा, क्यूब के सेंटर में, और फेस सेंटर में 8 आइटम्स रीअरेंज एट द 8 कॉर्नर एंड 6 आइटम्स आर रीअरेंज एट द 6 फेसेस. तो नंबर ऑफ आइटम्स आर 4. तो यहां पर क्यूबिक में साइड्स आर सेम एंड ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. इट क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: SCC, BCC and FCC. For example, NaCl, KCl, zinc sulfide and copper, which possess cubic structure. Now second one is tetragonal. In a case of tetragonal, A is equal to B, not equal to C. That means one of the side is different, not the same. That means 2 sides are equal. Hence unequal sides is 1. Unequal side यहाँ पर कितने होंगे? 1 होगी. 2 साइड सेम एंड ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. यहाँ सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे. तो इन केस ऑफ सेकंड tetragonal, it classified into 2 types as SCC and BCC. SCC and BCC. For example, SNO2, TiO2 and CaSO4. तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेट्रागोनल में एक साइड डिफरेंट है. आफ्टर देन ऑर्थोरोम्बिक, third one, orthorhombic. Now in case of orthorhombic, A is not equal to B is not equal to C. That means all the sides are different, not the same. Hence unequal sides are 2, but all the angles are of 90 degree. Example KNO3, BaSO4 and K2SO4. तो ये क्लासीफाई होता है यहाँ पर 4 टाइप्स में. Those 4 types are SCC, BCC,
FCC and ECC. You are well familiar about ECC, एंड सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल. नंबर ऑफ आइटम कितने और कैसे निकालना है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है. तो ऑर्थोरोम्बिक क्लासिफाइड इनटू व्हाट? 4 टाइप्स. ओके, यहां पर ऑर्थोरोम्बिक में दोनों साइड्स अनइक्वल हैं, इसका मतलब A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C. यहां पर आप देख सकते हो ऑर्थोरोम्बिक तक एक एक साइड यहां पर अनइक्वल होती है और यहां पर एंगल लेकिन तीनों के तीनों 90 डिग्री है. नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट वन मोनोक्लिनिक. In this monoclinic, all these sides are also different, not the same. It classified into 2 types. ये भी 2 टाइप में क्लासीफाई होता है. तो 4 monoclinic. Monoclinic classified into 2. That means SCC and next one is ECC. SCC and what? ECC. तो यहां पर आप देख सकते हो A is not equal to B is not equal to C, बट यहां पर अल्फा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90 या बीटा ये 90 डिग्री नहीं होगा. एग्जांपल्स Na2SO4.10H2. दिस इज 4 टाइप. नाउ फिफ्थ वन इज ट्राइक्लिनिक. ट्राइक्लिनिक में आप देख सकते हो इन दिस ट्राइक्लिनिक A is not equal to B is not equal to C. That means all the sides are different and all the angles are also not equal to 90 degree. All sides are not equal but equal to what? 90 degree. तो यहां पर आप देख सकते हो ट्राइक्लिनिक. इस ट्राइक्लिनिक में A is not equal to B is not equal to C. All the sides different. All the angles are of different. K2CR2O7 ये एक टाइप में क्लासीफाई होता है और वो टाइप होगा what? SCC. वो होगा सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल SCC. आफ्टर देन हेक्सागोनल. A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C. यहां पर आप देख सकते हो यहां गैमा एंगल 120 होगा लेकिन अल्फा बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा. एंड नेक्स्ट वन रोम्बोहेड्रल. A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C. यहां पर सारे साइड सेम हैं इसीलिए 0 अनइक्वल साइड्स बट ऑल द एंगल्स आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. तो यहां पर इस चार्ट में ये तो हमने क्लियर कर लिया एंगल्स, साइड्स, लेकिन यहां पर 2 चीजें आपको खास फोकस करनी है. वो चीजें ये, सबसे पहले अगर आपको इसे प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखना है तो यहां पर आपको एक छोटा सा कोड पता होना चाहिए कि इसे किस तरह से ध्यान में रखा जाए. मतलब फॉर योर लर्निंग, फॉर योर रिमाइंड करने के लिए इसे प्रॉपर तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो. इसका एक छोटा सा प्योर कोड ये होगा क्यूट अवर मदर. आप यहां पर देख सकते हो दिस इज स्मॉलेस्ट कोड क्यूट अवर मदर. CU क्यूब, Q मीन्स क्यूबिक, T मतलब टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, अवर ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक. यहां पर M दिया हुआ है. दैट मीन्स यू कैन राइट मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक. यहां पर MO मीन्स मोनोक्लिनिक, T ट्राइक्लिनिक, HE हेक्सागोनल and last one is R rhombohedral. rhombohedral. तो यहां पर एक कोड से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं. CU क्यूबिक, यहां पर आप देख सकते हो. TE टेट्रागोनल, सेकंड वन. OUR अवर मतलब यहां पर ऑर्थोरोम्बिक, थर्ड वन. आफ्टर देन MO मोनोक्लिनिक, आफ्टर देन T ट्राइक्लिनिक, HE हेक्सागोनल और यहां R दिया है रोम्बोहेड्रल. इस तरह से दिस 7 टाइप्स यू कैन रिमाइंड बाय यूजिंग सच टाइप ऑफ कोड. यहां पर सबसे पहली बात आपको यह ध्यान में रखनी है इसका कोड क्या है. तो कोड क्या है इसका ध्यान में रखने के लिए क्यूट अवर मदर. दैट मीन्स आप इस 7 टाइप्स को रिमाइंड कर सकते हो. नाउ सेकंड वन जो आपको ध्यान में रखना है वो अनइक्वल साइड्स.
इससे भी आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर गेन हो जाएगी। अनइक्वल साइड में एक प्रॉपर सीरीज लगानी है। क्यूट आवर मदर में अनइक्वल साइड्स 0 1 2 2 2 0 1 2 2 2 1 0, मतलब जो 0 से स्टार्ट होता है 2 तक जाता है, 2 2 2 3 बार, आफ्टर देन वंस अगेन 1 एंड 0। तो यहां पर इससे भी पता चलेगा कि यहां पर साइड्स कौन से इक्वल और कौन से अनइक्वल। और बाद में आपको जो ध्यान में रखना है वो है कुछ एग्जांपल्स। इस तरह से ये थे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस, ये था उसका सेकंड टाइप। और आपको दूसरी चीज जो ध्यान में रखनी है वो है इसके टाइप्स, कि कितने टाइप में क्लासीफाई होता है। तो नीचे के ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल इनके 1 1 1 मतलब सिंगल एससीसी फॉर्म में ही है। लेकिन यहां पर क्यूबिक, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, टेट्रागोनल, एससीसी, बीसीसी, ये चारों टाइप में क्लासिफाई होता है। एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी, और ये मोनोक्लिनिक एससीसी एंड ईसीसी। इस तरह से कुछ चीजें इसके अंदर हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए। इन दिस केस आपने क्या पढ़ा है? टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस विद अ प्रॉपर एंड बेस्ट कोड, दैट इज क्यूट अवर मदर। नाउ क्रिस्टल लैटिसेस के टाइप्स डिस्कस करने के बाद अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो कंसेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस में हाउ टू कैलकुलेट रेडियस किस तरह से कैलकुलेट करना है, उसके मैं एक छोटी सी शॉर्टकट ट्रिक आपको यहां पर बताऊंगा, जिस ट्रिक से क्लियर हो जाएगा कि उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आपको एटॉमिक रेडियस जो कैलकुलेट करनी है क्रिस्टल लैटिस में, यूनिट सेल में, तो यहां पर देख सकते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, और इसे सेकंड हेडिंग आई कैन गिव रिलेशन बिटवीन ए डी एंड आर, ADR का रिलेशन, वेयर ए इज नथिंग बट एज लेंथ, डी मीन्स इंटर आयोनिक डिस्टेंस, और यहां पर आर दिया है दैट इज रेडियस। आर क्या होगा? रेडियस। नाउ एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करने के लिए एक छोटी सी और शॉर्टकट ट्रिक जो आपको बहुत ही काम आएगी, और जिससे आप इजीली अगर एटॉमिक रेडियस कभी भूल भी जाते हो तो आप इससे बहुत ही रैपिडली एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो एटॉमिक रेडियस किस तरह से यहां कैलकुलेट करना है। एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करने के लिए मैं सबसे पहले यहां पर एक छोटी सी डायग्राम पुट करता हूं। Suppose one of the cube. Consider one of the cube. इससे पूरा क्लियर हो जाएगा how to calculate atomic radius. Suppose one of the cube. Now in this cube, you are well familiar, this is एज लेंथ। ये क्या होना चाहिए? यहां पर एज लेंथ होना चाहिए, जिसे मैं ए से कंसिडर करता हूं। ये भी यहां पर एज लेंथ होगा, तो यहां पर आप देख सकते हो एज लेंथ ए होगा। मैं यहां ड्रॉ करता हूं एक छोटा सा फेस डायगोनल, और एक ड्रॉ करता हूं यहां पर बॉडी डायगोनल। एक ड्रॉ किया है मैंने बॉडी डायगोनल। तो यहां पर आप देख सकते हो कंसिडर दिस इज ए बी सी, और इसे रेफर कर रहा हूं डी। बस ये एक डायग्राम अगर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाती है तो आप तीनों भी क्रिस्टल का एटॉमिक रेडियस इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्या समझे? यहां पर एक क्यूब कंसिडर किया है, क्यूब की साइड ए होगी, दैट मीन्स एज लेंथ ए, एंड यहां पर एक ड्रॉ किया है फेस डायगोनल और एक ड्रॉ किया है बॉडी डायगोनल।
That means consider AB is face diagonal and AD is body diagonal and edge length is A. That means this crystal is cubic. A is equal to B is equal to C. तो यहां पर आप देख सकते हो अगर ये एज लेंथ A है और ये भी साइड A है तो इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, what? अब यहां पर आप देख सकते हो ABC में AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां पर AC कितना दिया हुआ है, ये A होगा, दैट मीन्स A स्क्वायर प्लस यहां पर BC इज ऑल्सो गिवन एज A स्क्वायर और यहां पर AB मुझे फेस डायगोनल कैलकुलेट करना है तो यहां पर आप देख सकते हो A स्क्वायर इट बिकम ट्वाइस A स्क्वायर, दैट मीन्स ये AB स्क्वायर होगा। तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2A, AB होना चाहिए अंडर रूट ऑफ 2A, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ AB इज अंडर रूट 2A। आफ्टर देन हम डिस्कस करेंगे बॉडी डायगोनल, उसे किस तरह से कैलकुलेट करना है। नाउ बॉडी डायगोनल में इन ट्रायंगल ADB, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। What is AB? AB is nothing but root 2A, तो ये root 2A plus what is BD? BD is nothing but A स्क्वायर। That means यहाँ पर क्या बना है AD स्क्वायर, तो यहाँ पर root 2A इसका स्क्वायर लेना है तो ये बनेगा root 2 इंटू root 2 A स्क्वायर it becomes 3A स्क्वायर, तो AD is equal to it become under root of 3A. The value of AD is under root of 3A. तो यहां पर एक बात क्लियर हो चुकी है, that is what? Face diagonal, the value of face diagonal is root 2A and body diagonal, the value of body diagonal is root 3A। बस आपको यही ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है। Now from this diagram and mathematical operation, now it is clear that the value of body diagonal AD is root 3A and value of face diagonal AB is root 2A. Okay? From these two values we can calculate in SCC, BCC and FCC इसकी रेडियस क्या होगी, ये सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाएगी। Now atomic radius for SCC, for simple cubic crystal. Now simple cubic crystal में you are well familiar, you are well familiar in SCC consider one of the cube, ओके यहां पर जो मैंने क्यूब लिया है तो इन दिस केस यू कैन ऑब्जर्व 8 atoms rearrange at the 8 corner, that means 2 atoms touches to each other, यहां 2 एटम एक दूसरे को टच करते हैं, ओके एंड इंटर आयनिक डिस्टेंस जो मैंने D लिया है वो भी D होगा, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज A और D। तो यहां पर आप देख सकते हो in this case first one, second one, इस तरह से मैं ले रहा हूं, तो मैं इसे R मान सकता हूं और इसे भी R मान सकता हूं और ये वैल्यू होगी यहां पर A। अब यहां पर ये R A, that means I can write D is equal to A is equal to 2R is equal to 2R, that means I can write R is equal to A by 2
और r इज इक्वल टू d बाई टू, r इज इक्वल टू d बाई टू। तो यहां पर r इज इक्वल टू एक तो a बाई टू ले सकते हो या r इज इक्वल टू d बाई टू। द वैल्यू ऑफ a इज नथिंग बट 2r। a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहां पर? 2r होनी चाहिए। दैट मीन्स फ्रॉम दिस ऑपरेशन इट इज क्लियर, रेडियस इज नथिंग बट हाफ ऑफ द एज लेंथ a बाई टू एंड एज लेंथ a इज इक्वल टू 2r एंड इंटर आयोनिक डिस्टेंस जो d है वो कितना होना चाहिए? d 2r होना चाहिए। दैट मीन्स यहां पर इंटर आयोनिक डिस्टेंस और एज लेंथ सेम ही होगा 2r। इस तरह से दिस इज रेडियस ऑफ व्हाट? SCC, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। नाउ नेक्स्ट वन इज रेडियस ऑफ BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। BCC के लिए once again consider one of the cube, वन ऑफ द क्यूब। अब बॉडी सेंटर में एक एटम सेंटर में होगा और कॉर्नर पर 1 2 3, 1 2 एंड 3। तो यहां पर आप देख सकते हो दिस इज फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। तो यहां पर अगर मैं ड्रॉ करता हूं बॉडी डायगोनल, नाउ यू कैन ऑब्जर्व R, ये सेंटर होगा, R R R, दैट मीन्स द टोटल डिस्टेंस इज 1 2 3। तो यहां पर आप देख सकते हो R R R एंड R एंड बॉडी डायगोनल जो होता है दैट इज √3a। ये कितना होना चाहिए? √3a। अगर मैं रेडियस कैलकुलेट करता हूं तो देयरफॉर आई कैन राइट बॉडी डायगोनल √3a इज इक्वल टू व्हाट? 4r। देयरफॉर r इज इक्वल टू आई कैन राइट √3/4a। r इज इक्वल टू व्हाट? √3/4a। ये ले सकते हो या एज लेंथ इज इक्वल टू यू कैन राइट 4r/√3। आप यहां पर ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आप डिस्टेंस की बात करोगे तो डिस्टेंस दैट मीन्स r यहां पर डिस्टेंस से d होगा, लेकिन यहां पर हमें एज लेंथ और रेडियस ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पर रेडियस मिली √3/4a और यहां पर मिला a इज इक्वल टू 4r/√3। 4r/√3। दिस इज अबाउट SCC एंड BCC एटॉमिक रेडियस। ओके, तो यहां पर कॉर्नर पे मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। इन SCC रेडियस इज इक्वल टू a/2 एंड a इज इक्वल टू twice r। इन BCC radius is equal to √3/4a and a is equal to 4r/√3 and third one face center cubic crystal FCC. Now in case of FCC face center मैं इसी क्यूब को यहां पर कंसिडर करता हूं और इससे सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाएगी। फेस सेंटर में सपोज वन ऑफ द आइटम, अनादर वन। ओके, तो यहां पर फेस सेंटर के 3 आइटम मैं रेफर कर रहा हूं, 1 2 3। नाउ यू ऑब्टेन R एंड R। यू आर वेल फैमिलियर अबाउट फेस सेंटर। फेस सेंटर में आपका फेस डायगोनल कितना होता है? √2a इज इक्वल टू 4r। डायरेक्ट यहां से मिलेगा r √2a/4। √2a/4 यू आर वेल फैमिलियर,
रूट 2 इंटू ए, 4 मीन्स 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, लेकिन 2 कैन बी रिटन एज रूट 2 इंटू रूट 2, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो रूट 2 ए इंटू 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, देयरफॉर रूट 2 कैंसल, तो r इज इक्वल टू क्या मिला है, a अपॉन 2 रूट 2, a अपॉन 2 रूट 2, तो a इज इक्वल टू आई कैन राइट 2 रूट 2 r। तो यहाँ पर फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में जो रेडियस मिला है दैट इज a बाय 2 रूट 2, a बाय 2 रूट 2, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 2 रूट 2 इंटू r। This is about atomic radius in SCC, BCC and FCC. This is the concept of atomic radius. Now in case of packing fraction हमें ये डिस्कस करना है कि यूनिट सेल के अंदर जो भी हो वो SCC, BCC, FCC, that means face centric cubic, body centric cubic and simple cubic, इसके अंदर number of atoms in SCC number of atom 1, BCC number of atom 2, FCC number of atoms 4। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, दैट मीन्स हाउ दोस एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर, ये रिप्रेजेंट करने के लिए जो कंसेप्ट है दैट कंसेप्ट इज नथिंग बट पैकिंग फ्रैक्शन। तो आज हमें देखना है पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है। इन सिंपल केस पैकिंग फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ volume occupied by number of atoms, present in unit cell to total volume of unit cell, this ratio is called as packing fraction in 3-dimensional system। यहां पर मैंने जैसे बात की है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, यूनिट सेल के अंदर अगर वो यूनिट सेल SCC है तो नंबर ऑफ एटम इज 1, if that unit cell is BCC number of atom is 2, if that unit cell is FCC number of atoms are 4, that means volume changes with respect to number of atoms present in the unit cell, that ratio is called as packing fraction। तो in simple language I can write packing fraction is nothing but volume occupied by number of atoms to total volume of unit cell into I can write 100 into what 100। तो यहां पर देख सकते हो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर फ्रैक्शन का परसेंटेज भी निकल जाएगा, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स। तो यू आर वेल फैमिलियर इन केस ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। अगर मैं 3 डायमेंशन में बात करता हूं तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड सिंगल आइटम का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, एंड यू आर वेल फैमिलियर अगर कोई क्यूब है तो एज लेंथ कितनी होनी चाहिए उसकी a, अगर उसकी एज लेंथ a है दैट मीन्स व्हाट, ये a एज लेंथ अगर a है तो उसका वॉल्यूम होगा a क्यूब इनटू आई कैन राइट 100। This is formula of packing fraction 4/3 pi r cube by a cube into 100, 4/3 pi r cube by a cube into 100। This is packing fraction for 3-dimensional system। ये कहां पर होना चाहिए 3-dimensional system में पैकिंग फ्रैक्शन होना चाहिए। बट अगर मैं 2D लेता हूं तो वहां पर आपको लेना है एरिया ऑक्यूपाइड बाय टोटल एरिया इंटू 100। तो यहां पर हमें 3 डायमेंशन में पैकिंग फ्रैक्शन डिस्कस करना है। तो ये फॉर्मूला आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि पैकिंग फ्रैक्शन में 4/3 पाई आर क्यूब बाय ए क्यूब इंटू 100। तो यहां पर मैं एक z से इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं, वेयर z इज नथिंग बट नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होने चाहिए z।
तो यहां पर z से मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू z इंटू 4/3 पाई r क्यूब बाई a क्यूब इंटू 100 इन 3 डायमेंशनल सिस्टम। नाउ एक बार देख लेते हैं इन केस ऑफ SCC, BCC और FCC में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है। अब ये पैकिंग फ्रैक्शन मुझे डिस्कस करना है, तो उससे पहले फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं, थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया है जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें कि क्या होना चाहिए, फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल। फेस डायगोनल की अगर मैं बात करता हूं तो फेस डायगोनल इज √2a एंड बॉडी डायगोनल इज √3a। बस वो फिर से एक बार ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन इन SCC सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। पैकिंग फ्रैक्शन इन SCC simple cubic crystal. Now you are well familiar in simple cubic crystal number of atoms. Number of atoms कितने होने चाहिए, 1/8 into 8 is equal to 1. Number of atoms उसके अंदर 1 होते हैं in this. Now you are well familiar. Another relation is SCC में क्या होता है, A is equal to 2r, a is equal to what, 2r, तो r is equal to क्या मिलना चाहिए मुझे, a/2. if r is equal to a/2 that means a is equal to 2r, तो SCC सिंपल क्यूबिक में पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, therefore पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम occupied by number of atom. I can write directly formula z into 4/3 pi r cube by a cube into 100. The value of z for SCC is 1. Number of atom that means z ये 1 है into 4/3 pi r cube. यहाँ पर एक तो आप r की वैल्यू पुट कर सकते हो या यहाँ पर आप a की वैल्यू पुट कर सकते हो एज यू विश। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ r बाय ये a यहाँ पर नीचे ले लेता हूँ, direct I can write a cube into 100. Therefore I can write 100 into 4, 400. Okay, 400 pi by 3 into value of r is a/2. Value of r is a/2 by a का क्यूब। तो यहाँ पर a कैंसल, 1/2 1/2 तो 2 का क्यूब कितना होना चाहिए, 8. Therefore you obtain packing fraction is equal to 400 pi by 3 into यहाँ पर 1/8, तो ये होना चाहिए 400 into 3.14 into dividing by 3 into 8 is equal to approx it becomes 52 into 100%, 52%। तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने पैकिंग फ्रैक्शन किस तरह से कैलकुलेट किया है, बाय यूजिंग सिंपल फार्मूला। यहां पर r की वैल्यू पुट कर सकते हो यहां पर, या तो फिर a की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो यहां पर SCC में पैकिंग फ्रैक्शन मिला 52%। नाउ नेक्स्ट वन BCC। Now next one BCC. In case of BCC that means body center cubic crystal, तो number of atoms is equal to, इसे मानता हूं मैं Z, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में 1 प्लस 1/8 into 8 इज इक्वल टू टोटल मिला 2। और यहां पर फेस बॉडी डायगोनल में रिलेशन है 3a इज इक्वल टू वॉट, 4r। तो यहां पर यू कैन राइट a इज इक्वल टू 4/3r या r इज इक्वल टू यू कैन राइट √3a/4। दोनों में से आप कोई भी रिलेशन यहां पर यूज कर सकते हो। देयरफॉर पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू z इंटू 4/3 pi r cube by a cube into 100 is equal to number of atoms z, that means 2 into 4/3 pi
into r a cube. तो यहां पर I can write r by a cube into 100. Therefore यहां पर आप देख सकते हो the value of r is √3 by 4. You can put, otherwise a is equal to 4 by √3 r. आप यहां पर पुट कर सकते हो. Therefore यहां पर 100 4 जा 400, ये मिला 1600, सॉरी ये मिला है 800 डिवाइडिंग बाय 2 into यहां पर वैल्यू ऑफ r इज √3 by 4. तो यू कैन राइट √3 by 4, √3 by 4 a by a का क्यूब, a कैंसल. Therefore √3 by 4 it becomes 800 by 3. √3 into √3 into √3, ये बना √3, that means dividing by 64. If we calculate pi, therefore 800 by 3 into 3 √3 into 3.42 dividing by 64. If you calculate, it becomes 68%. This is the packing fraction of body center cubic crystal. यहां पर आपको एक बात खास ध्यान में ये रखनी है, अगर आपको फेस डायगोनल या बॉडी डायगोनल ये पता है, मतलब रेडियस अगर पता है या ए पता है, तो डायरेक्ट आप पैकिंग फ्रैक्शन की आर की वैल्यू पुट करके उसे सीधा कैलकुलेट कर सकते हो. इस तरह से ये पैकिंग फ्रैक्शन इन केस ऑफ बीसीसी और बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल. नाउ नेक्स्ट वन इन केस ऑफ फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल. फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल. In a case of face center cubic crystal FCC, number of atoms, that means Z is equal to, at the corner की अगर बात होती है तो 1/8 into 8 is equal to 1. At the faces 1/2 into 6 equal to 3. So value of Z is 4. Value of Z is 4. You are well familiar about face diagonal. जो face diagonal होता है वो है √2a. अगर ये √2 है तो √2a is equal to, it become 4r. तो r is equal to √2 by 4 into a, या a is equal to 4r by √2. इस तरह से आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो. तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाय a क्यूब इंटू 100. देयरफॉर z 4 इंटू 4/3 पाई, ओके, डिवाइडिंग डायरेक्ट लेता हूं r बाय a cube into 100. Now it becomes 1600. 4 4s are 16. 16 into 100, 1600 dividing by 3 pi r by a. The value of r you can put √2 by 4. Therefore √2 by 4 a by a cube. A cancel. Now 600 into 3.142 dividing by 3 into √2 का क्यूब, it becomes 2√2, 4 का क्यूब 64. If you solve this, you obtain at about 74% as a packing fraction. That means यहाँ पर आप देख सकते हो जो पैकिंग फ्रैक्शन मिला है, पैकिंग फ्रैक्शन इन केस ऑफ SCC 52%, इन केस ऑफ BCC 68%, इन केस ऑफ FCC ये मिला है 74%. दैट मीन्स व्हाट, यहां पर आप एम्प्टी स्पेस भी कैलकुलेट कर सकते हो. इन दिस केस 52% is the packing fraction. That means number of atoms which are closely bounded to each other. Then 100 minus 52%, remaining portion is the vacant or empty space present in SCC. 100 minus 68, that means remaining portion
इज एम्प्टी स्पेस, यहाँ पर 100 माइनस 74%, तो रिमेनिंग स्पेस होगा आपका एम्प्टी स्पेस। दैट मीन्स फ्रॉम पैकिंग फ्रैक्शन आप ये निकाल सकते हो हाउ दोस एटम्स विच आर कम क्लोज टू ईच अदर वेरी क्लोजली एंड द एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। इससे पता चलता है यूनिट सेल के अंदर वो एटम किस तरह से बाउंड किए हुए हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। थैंक यू।